बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, a detailed court of inquiry was undertaken by Pakistan Army to ascertain correctness of the complaints in Top City case made against Lieutenant General Faiz Hamid, retired. Consequently, appropriate disciplinary action has been initiated against Lieutenant General Faiz Hamid, retired, under provisions of Pakistan Army Act. In addition, multiple instances of violation of Pakistan Army Act post retirement has also been established. The process of field general court martial has been initiated and Lieutenant General Faiz Hamid, retired, has been taken into military custody. یہ آئی ہے جناب پریس ریلیز، اور یہ پریس ریلیز ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ آئی ایس پی آر نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے فیض حمید کو، یعنی عمران خان نیازی کے کوچ کو، عمران خان نیازی کے سہولت کار کو فوج نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، اور اب ان کا کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2018 سے اب تک کا جو سینیریو ہے، یہ میرے مطابق یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور میں آج آپ کو انشاءاللہ اندر کی خبر بتاؤں گا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، ان کو کسٹڈی میں کیوں لیا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور یہ کیا سلسلہ ادھر رکے گا، یا ابھی یہ بات وہی جیسے فیصل ووڈا صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات بہت دور تلک جائے گی، اور یہ جائے گی کیوں، اس کی نوبت کیوں پیش آئی ہے، یہ فیض حمید صاحب کیا کر رہے تھے اور کیا کیا تھا انہوں نے، بہت ہی کوئی پکے ثبوت لگے ہیں، اور کیوں ان پہ مسلسل تنقید ہو رہی تھی، مجھ سمیت سارے تنقید کر رہے تھے کہ بھائی یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ان کو کیوں نہیں پکڑتے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ بہت کچھ جناب ایکسکلوسیو معلومات ہیں، ایک سیکنڈ بھی آپ ویڈیو سے نہیں نکل سکتے۔ بس جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، میں اتنا کہوں گا کیونکہ بہت ہی امپارٹنٹ معلومات ہیں آج میرے پاس، میں اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جس طرح سے یہ تعاون فرما رہے ہیں، آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس تپتی چلچلاتی حبس والی گرمی میں آپ ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے، پیاسوں کو پانی پلائیے۔ آ جائیے جناب، بات یہ ہے فیض حمید کو، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آرمی کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سارے پٹھے کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب مسئلہ ایک پہلی پریس ریلیز میں تو یہ ہے کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کی، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا، اور یہ جو ٹاپ سٹی کیس تھا جو فیض حمید صاحب نے اودھم مچایا تھا، ان کے اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں گھر میں گھس گئے تھے پوری غارت لے کے، اور وہاں جس طریقے سے ان کو یرغمال بنایا، جس طریقے سے اغوا کر کے لے گئے، ان کے گھر سے نقدی، ان کے گھر سے سونا، ان کے گھر سے پتہ نہیں کیا کیا لے کے گئے، اور وہ پھر واپس بھی نہیں کیا، اور وہ ان کے پوری کی پوری سوسائٹی اپنے عزیزوں کے نام پہ کروانا چاہ رہے تھے۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مار دیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو خیر، اب وہ کیس سپریم کورٹ میں گیا، تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن فیض حمید صاحب کو کیوں اب آرمی کسٹڈی میں لیا گیا؟ آپ تنقید کر رہے تھے، میں بھی تنقید کر رہا تھا، بہت سارے لوگ بھی تنقید کر رہے تھے کہ بھائی یہ فیض حمید کو کیوں نہیں پکڑتے۔ ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پاورفل لوگوں نے کہا تھا، نواز شریف صاحب سے بھی کہا تھا، یہ میری خبر تھی اور میں ایکسکلوسیو نیوز تھی اس وقت بھی، کہ جنرل باجوہ آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں اور اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اگر فیض حمید کے خلاف ہو تو بہت سارے ثبوت ہیں۔ تو خیر بعد میں پھر چپ ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے بھی خبر آئی کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے
मेजर जनरल के अंडर, और वही वो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस करेगी वगैरह। ठीक, अब हुआ क्यों है? आप कहेंगे कि यार इसमें तो प्रेस रिलीज में तो वादे लिखा हुआ है कि इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या कंप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्यों है? मैं फिर भी कह रहा हूं कि क्यों हुआ है, असल चक्कर क्या है, अंदर की कहानी क्या है, ये बताना है। अब मज़ीद क्या होगा, यूथियों के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। यूथिए हुण थोड़ा घबराना बनदा, ठीक है। अब आपको घबराना चाहिए भी सही। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज़ हमीद और नियाज़ी के राब्ते अभी तक जारी थे। अभी कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब ने भी ये ख़बर दी थी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि फैज़ हमीद के और नियाज़ी के राब्ते जेल के अंदर भी जारी हैं। और ये ख़बर जब दी गई शहबाज शरीफ साहब को और उनको जब बताया गया कि इनके पीछे कौन हैं, तो फिर उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो भाई हम तो ये कब से कह रहे हैं कि हाफिज़ साहब अपनी मंजी तले डांग फेरें। कभी कोई लोग कहते हैं कि जनाब हाफिज़ साहब कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम जैसे बंदा ज़रा थोड़ा सा तहज़ीब से बात करते हैं तो हम कहते हैं हाफिज़ साहब शरीफ हैं, शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमियों की शराफत से बहुत सारे नाजायज़ फ़ायदा उठाते होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि शरीफ तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो गाफिल हों। गाफिल नहीं है वो, नो डाउट उनको सब कुछ पता था, लेकिन वो बार बार वार्न भी कर रहे थे। अब आ जाइए कि मैं एक सीक्वेंस से आपको बताऊं कि असल में मामला क्या है। और ये आप हैरान होंगे कि यार अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। हर बंदा ही कह रहा था कि फैज़ हमीद, मैंने आपको बताया था कि नियाज़ी 10 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, अगर शर्त यह है कि उसको जेल में रखा जाए। उसको रखा जा रहा है महल में, उसको रखा जा रहा है जैसे उसके पास होटल जैसी सहूलियात हों। वो चॉकलेट्स भी खा रहा है, वो बकरे भी खा रहा है, वो देसी घी में पका के वो देसी मुर्ग भी खा रहा है, वो साथ साथ बैरकों में चीते की तरह भाग भी रहा है। हमारे टैक्स के पैसों से नियाज़ी को 10-10 लाख की एक्सरसाइज बाइक्स भी मिल रही हैं, आइसक्रीमें भी मिल रही हैं, कूलर भी है, पता नहीं क्या क्या। और अभी वो कह रहे थे हमें इतना, वो पता नहीं, पहले तो फ्रिज था उनके पास गालिबन, लेकिन वो कह रहे जनाब हमें को और फ्रिज भी दे दें। तो हमें पता नहीं क्या क्या उनको चाहिए, और रोज़ ही आ जाते हैं, एक पिटीशन डाल देते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी नियाज़ी की सहूलतें हमें बताएं कौन कौन सी उनको मिल रही हैं। इन काले भोंडों ने कभी किसी और भी कैदी की सहूलतें, नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज साहबा एक खातून हो के, वहाँ से जरदारी साहब की बहन आसिफ अली जरदारी जो कि हार्ट पेशेंट हैं, वो तो कभी आपने सुना कि इन्होंने मंगवाई हूँ और इन्होंने कहा है कि जनाब ये उनकी सहूलतें भी हमें बताएं। आखिर वो सदर पाकिस्तान थे, वो 3 दफ़ा के इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, वो वज़ीर आज़म की बेटी और ख़ातून थी जिनका सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं था, वो एक सदर की बहन थी। तो क्या उन्होंने भी कभी, इन्होंने भी मंगवाई? पूरी की पूरी पार्टी अंदर थी, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। तो फिर मुझे बताएं कि इन्होंने अब क्यों मंगवाई हैं? बाहर रोज़ ही आ जाता है कोई तमाशा कि जनाब ये दें कि जी अब उनकी सहूलियात, वो उनको भी बुलाएं और उनको बुलाएं, रोज़ ही नई एक पटिशन आ जाती है। अब जो है, जो फैसल वोडा साहब कह रहे हैं कि अब आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में, अब आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में पीटीआई, तहरीक इंसाफ और इमरान खान ज़मीन पर लेट जाएंगे। ये मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट की थी कि हाफिज़ दवाखाना में यूथिया वायरस की वैक्सीन तैयारी के आखिरी मराहल में है। अब समझ आ गई आपको। और इसके मेरी ट्वीट के नीचे वो डॉक्टर फरहान विर्क साहब ने कहा था कि बस 1 हफ्ते में इसका आगाज़ होने वाला है, इनिशिएट होने वाली है और 1 हफ्ते में इसका आगाज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, वो आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। अभी बहुत दूर तलक बात जाएगी, अभी थोड़ा सा रुको यूथियो। मैंने तो आपको ख़बरदार किया था, आप रोज़ाना चूना लगा रहे हैं, ये FA फेल, मैट्रिक फेल यूट्यूबर, और ये यूथियों को चूना लगा रहे हैं। उनको कह रहे हैं ये परसों अभी वो जेल से बाहर आ जाएगा, कोई उनको कहता है अगले महीने आ जाएगा। अब उसका कोच पकड़ा गया है, कोच, अब उसका सहूलतकार पकड़ा गया है। जनरल फैज़ हमीद, जब थोड़ा सा सुनिएगा तो सही, मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। और मैंने जो आपको, इन्होंने ऊधम क्या मचाया, ये ISI को
चंबा मार के बैठा था और छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसने जनाब कितने सियासतदानों को, कितने, मुझे एक, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ एक सेकंड मिस न कीजिएगा वीडियो का, आप पछताते रह जाएंगे, यकीन कीजिए। मुझे एक अहम तरीन सियासतदान, और वो सियासतदान मैं अब नाम नहीं लेता क्योंकि बेचारा फंस जाएगा, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, ठीक हो गया ना, यह ताल्लुक था। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप 1947 से लेकर 2018 तक, या आज तक, वो 2018 से थोड़े बाद मेरे से बात कर रहे थे, आपको मैं कहूँ कि आप अमीर तरीन जर्नैल का नाम बताएं, तो आप किसका नाम बताएंगे? मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये तो बहुत ही मुश्किल नहीं, मेरे लिए तो बड़ा नामुमकिन सवाल है कि ये तो आप बहुत बड़े बड़े आए जिन पे बड़ी बड़ी ये इस तरह का। उन्होंने कहा 1947 से लेकर 2018 तक या अब तक जो पाक फ़ौज का अमीर तरीन जर्नैल है वो जनरल फैज़ है। और वो कैसे अमीर तरीन हुआ वो फिर आपको पता है, वो फिर बड़ी उन्होंने मुझे स्टोरियाँ सुनाई। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में भी एमपीए का ये रेट था 5 करोड़ से 10 करोड़, और एमएनए का ये रेट था 10 से 15 करोड़ रुपए। और फैज़ हमीद कहते हैं कि अगर आपने देने हैं तो ठीक है, आप जीत जाएंगे, और फिर अगर आपने जीतने के बाद आपने मिनिस्टर भी बनना है तो फिर उसका ये रेट होगा, और जीतना पक्का है आप इधर जमा करवाएं, और अगर नहीं करवाना तो फिर आप हार जाएंगे। और ऐसा ही हुआ सबके साथ, जिसने दिए ठीक है, और जो नहीं दे सकता था वो फिर हार भी गए। और फिर कुछ ऐसे थे जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन थी, वो वहाँ एक्सेप्शनल केसेस कुछ थे, वो फिर उसी तरीके से जीत भी गए, न देने के बावजूद भी। अब उसके बाद जनाब इन्होंने वो ऊधम मचाई कि जनाब खान साहब जब जीत गए तो फिर ये आल इनाल थे, फिर इनके वो लंबे प्लान, इन्होंने सियासतदानों को अगवा किया, इन्होंने ताजरों को अगवा किया, इन्होंने अगवा बराए तावान लिया। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये जनरल फैज़ ने बहुत सारे ताजरों को अगवा करके अगवा बराए तावान, और ये पकड़ा गया, इसके करतूत सामने आए। जनरल बाजवा ने ये एक गुनाह ये भी किया कि उन्होंने इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू नहीं की, ठीक हो गया। या फिर वही वाली बात है कि शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते, ठीक है ना। अच्छा, बात ये है कि अब उसके बाद जब इनकी ये बारी आई, जनरल बाजवा साहब कहने के लिए गए इमरान खान साहब को कि जी आप इनको आप यहाँ से जाने दें, क्योंकि इन्होंने कोर करनी है। अगर उन्होंने आर्मी चीफ बनना है, ये मालूमात आपको पहले किसी ने नहीं दी होंगी, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर इन्होंने बनना है आर्मी चीफ तो फिर वो एक रिवायत है जो आर्मी में उन्होंने कोर करनी होती है, तो आप इनको यहाँ से रिलीज़ करें और ये कोर करें। इमरान खान ने आगे जनरल बाजवा से कहा कि आप आईएसआई को एक कोर डिक्लेयर कर दें। अब ये जो बात थी, जनरल बाजवा साहब के रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये बात इमरान खान नहीं कर सकता, ये बात किस चैनल से आ रही है। उनको समझ आ गई कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के कान में ये बात भरी है कि भाई मैं भी इधर ही बैठा रहूँगा, आपकी भी हिफाजत करूँगा, आप और मैं रोज़ मिलते भी रहेंगे और कोई ऐसा इशू भी नहीं है, और आप इनसे कहें कि इसी को कोर डिक्लेयर कर दें। उस कोर के ये बात करने से पहले बहुत ही अंदर के ज़राए ने मुझे बताया था, मैं हल्फन कह रहा हूँ, कि इन्होंने बाकायदा वो जैसे होती है ना एक कोर में वो डिव्स वगैरह और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स इन्होंने पूरी करनी शुरू कर दी थी। तो जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं ये नहीं है, फिर अगर ये कोर डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर तो आप वो तो जो DGISI होता है ना, उसको तो प्राइम मिनिस्टर लगाता है और प्राइम मिनिस्टर रिलीज़ करता है। और जब ये कोर हो जाएगी और कल मैं इसको कोर डिक्लेयर कर दूं, बिलफर्ज हम कोर कमांडर मीटिंग करें और हम ये फैसला करें कि ये जो ISI है ये कोर डिक्लेयर हो गई है, तो परसों फिर तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, फिर तो मैं जनरल फैज़ का जिधर तबादला कर दूं। आप समझ आ गई आपको? वो बहुत सारी जो बदमाशियां की गई ना, जो बहुत सारे पुठे काम किए गए, खैर कट इट शॉर्ट कि इमरान खान ने ज़िद कर ली बतौर वज़ीर आज़म, और साथ ही ISPR की भी एक प्रेस रिलीज़ आ गई कि जनरल फैज़ हमीद का तबादला कर दिया गया है।
तबादला करने के बाद भी आपको याद होगा कि ज़िद वही जारी रखी इमरान खान ने और जनरल फैज़ हमीद को वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, जबकि बाकी जितने भी कोर कमांडर इधर उधर हुए थे उन्होंने अपनी जगह ज्वाइन कर ली थी। जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि उस वक़्त गालिबन कराची के कोर कमांडर थे, वहाँ से उन्होंने आना था। अब वो इस इंतज़ार में बैठे कि यार ये जाए तो फिर मैं आऊँ और मैं चार्ज संभालूँ, तो खैर वो ये इमरान खान उसको रिलीज़ नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद बहुत फटा पड़ गया, आखिरकार इमरान खान को रिलीज़ करना पड़ा और कुछ दिनों के बाद उनको फिर कोर कमांडर पेशावर भेज दिया गया जनरल फैज़ हमीद को। यहाँ पर उनकी जगह जनरल नदीम अंजुम साहब आ गए। पेशावर में जाके इन्होंने वो ऊधम मचाया कि ये सारी पीटीआई से राब्ते में रहे। मैंने आपसे कहा आप एक सेकंड मिस नहीं कर सकते, मैं आज आपको वो मालूमात देने लगा हूँ। पेशावर में जाके इन्होंने पीटीआई से रब्ता किया। ये इमरान खान से मुसलसल राब्ते में थे, ये पीटीआई के हर रहनुमा के साथ राब्ते में थे। और तो और इन्होंने पीटीआई को खुफिया, पीटीआई की एक तरह की जो किचन कैबिनेट मीटिंग होती है उस मीटिंग में भी इन्होंने शिरकत की फैज़ हमीद साहब ने। और वहाँ ये मुसलसल कभी वहाँ पर जो है ना गवर्नर हाउस, तो कभी जनाब वज़ीर आला हाउस, तो कभी किस हाउस, तो कभी किधर, तो कभी किधर, तो ये जनाब उधर जो है ना ये उनके साथ राब्ते में थे और वहाँ पर ये मीटिंग कर रहे थे। बल्कि मीटिंग क्या कर रहे थे, पूरा प्लान उनको बना के दे रहे थे, पूरी एक साजिश बुन बुन के दे रहे थे। आपने अब ये करना है, अब आपने ये करना है, अब आपको मैं आपको मालूमात देता हूँ। आज आपको मैं ऐसी मालूमात देता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जब ये सारा प्लान बन गया और ये सब कुछ और लोगों ने भी भांप लिया, उसके बाद मैंने इस नाचीज़ ने एक मीटिंग भी की थी, मैं एक व्लॉग भी किया था और बताया था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। और मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद वहाँ के जो सेक्टर कमांडर हैं वो और किसी और के साथ वाक करते हुए पाए गए और ये वीडियो ने बहुत ही खलबली मचा के रख दी थी। और इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के मुझसे राब्ते भी हुए थे और ये मालूमात मुझे बहुत ही अथेंटिक बंदे ने दी थी। ठीक हो गया, मैं ऐसे नहीं, मैं कच्ची गोलियां नहीं, शुरली नहीं छोड़ता। और फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद का ये किया गया कि यार ये रात के अंधेरे में यहाँ भी आ जाता है, यहाँ इस्लामाबाद भी आ जाता है और ये इधर भी फिर मुलाकातें इसने शुरू कर दी। फिर उसके बाद इनको बहावलपुर भेज दिया गया। ऐसे ही ना, इनको बहुत दूर भेज दिया गया कि यार ये उधर होंगे तो फिर ये उस तरह की हो सकता है इनके काले करतूत को कम हो जाए। काले करतूत फिर भी कम नहीं हुए, इन्होंने राब्ता भी रखा। यहाँ तक कि इन्होंने ये कहा कि जी मेरी बच्ची की शादी है, मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ छुट्टी चाहिए, तो मैं ये पिंडी मैंने जाना है और वहाँ पर। तो अब जाहिर है जब इतना पर्सनल मामला हो तो फिर महकमे ने भी कहा कि यार एक कोर कमांडर है, उसकी बेटी की शादी है और उसने पिंडी जाना है, तो अब वो तो बड़ा एक जेन्युइन सी बात है ना, वो छुट्टी लेके आया ज़्यादा और उन छुट्टियों में भी इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए। फिर उसके बाद इनको कहा गया कि देखें आपकी बेटी की शादी थी, आपने ये कहा था और अब आप फिर वही उन्हीं करतूतों पे चल पड़े हो और उसी डगर पे चल पड़े हो और ये आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी, भले वो आपकी बेटी की शादी में शिरकत ना भी करें। तो सख्त वार्न किया गया। इस तरीके की ये ढीठ हड्डी थे। जबकि ये जब ये कोर कमांडर पेशावर थे तो इन्होंने दहशत गर्दों के साथ भी, जो खवारिज जिनको आज कहा जाता है खारजी फितना खवारिज के साथ भी राब्ते शुरू कर दिए। और ये वही दौर था जिसमें वो वापस बसाने वाली बात थी। इन्होंने ही ज़मान पार्क में भी लोग भेजे और इन्होंने वहाँ खवारिज के साथ भी राब्ते डेवलप किए और दोबारा उनको बसाने का भी और वो सारा कुछ और ये वैसा। हालांकि इनका डोमेन नहीं बनता था, कोर कमांडर का कोई डोमेन नहीं है इस तरह का, वो ऊपर से, और ये इन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर कुछ ऐसी मुलाकातें हुई जिस पर एतराज़ हुआ जनरल बाजवा साहब को भी कि यार ये बतौर कोर कमांडर भी ये इस तरह की मुलाकातें कर रहा है, कुछ सियासी भी और कोर कमांडर हाउस में कर रहा है। फिर एक प्रेस रिलीज़ आई और वहीं से बड़े घर से आई और उन्होंने पाबंदी लगा दी, वो चाहे सामने आई हो या ना आई हो, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई भी कोर कमांडर किसी से नहीं मिलेगा,
ये सारी चीज़ें मैं आपकी ज़रा मेमोरी को फ्रेश करने के लिए बता रहा हूँ। उससे ऑनवर्ड फिर इन्होंने वो तमाशा बनाना शुरू कर दिया, और जब जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की बारी आई और उनका नाम आया और यहाँ पर तो अदम एतमाद की तहरीक आ गई और सारा कुछ ये हो गया, तो फिर उसके बाद इन्होंने वो तमाशा ख़त्म नहीं किया। और जब इनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं, इन्होंने इमरान खान को कहा कि जाओ आप वहाँ पर लॉन्ग मार्च लेके जाओ, पिंडी में बैठो, बहुत कुछ इधर उधर बातें, इन्होंने सऊदीया तक को शिकायतें लगा के देख लीं, लेकिन वो मामला रुका नहीं है। जब उनकी अनाउंसमेंट हुई, अब इन्होंने कहा कि अब यहाँ पे रहना मेरा कोई ठीक नहीं है। इसका मतलब हालांकि ये रह सकते थे क्योंकि ये जूनियर थे जनरल आसिम मुनीर साहब से, कोई सीनियर हो तो फौज में वो रिवायत है वो चला जाता होता है, ये तो जूनियर थे। लेकिन चूंकि इनकी सांप की तरह का जहर जो इनको खुद अपने को भी खा रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी अब मैं नहीं रहूँगा। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जब ये फारिग होकर रिटायरमेंट लेके घर चले गए, तब भी ये चैन से नहीं बैठे। तब भी जनाब खबरें आई कि इनसे बहुत सारा मवाद ले लिया गया, ये किया गया, वो किया गया, तब भी ये इत्मीनान से नहीं बैठे। कटेड शार्ट के अभी रिसेंटली इन्होंने ये इमरान खान के साथ राब्ते में थे, जेल के अंदर भी। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब जेल के अंदर, तो बहुत सारे और भी तो इस काम में मुलव्वस होंगे ना, बहुत सारे और भी तो इस जुर्म में मुलव्वस होंगे, उनको भी तो सज़ा देनी चाहिए ना। और जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कौन है। तो जब उनको बताया गया तो हामिद मीर के बकौल उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका मतलब है कि बहुत कोई ख़तरनाक लोग उसके पीछे थे, जो सर्विंग लोग थे वो उसके पीछे थे कि इनके पीछे इनकी मुलाकातें करवाता कौन है। फिर उसके बाद इसी वजह से तो मैंने मुतअद्दिद बार कहा ना कि हाफिज़ साहब को चाहिए कि वो अपनी मंजी तले डांग फेरे, मुसलसल फेर रहे हैं लेकिन अभी तक भी गंद वहाँ मौजूद है, उस डंडी अपना मंजी तले डांग फेरनी चाहिए। मैंने आपको खबर दी थी, आप टाइम लाइन मौजूद है, ये तो बाद में बहुत सारे लोगों ने खबरें दी। मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सर्विंग जज जनरल बाजवा के साथ मुलाकात के लिए गए थे और उन्होंने सिफारिश की थी इमरान खान की। और वो 2 सर्विंग जजेस, एक जस्टिस जो अभी जिनके खिलाफ वो तो इंज़बाती कार्रवाई हो चुकी है कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ, अब तो वो जस्टिस भी नहीं कहना, वो जनाब मज़ाहिर अली अकबर नकवी, और दूसरे जो अपनी चीफ जस्टिस की बारी छोड़ के भाग गए थे जस्टिस इजाज़ उल एहसन साहब, वो थे। और ये सिफारिश करने के लिए आर्मी चीफ के पास पहुंच गए थे। अब जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट ज़रा देखें। ये मैं ऐसे शुरली नहीं छोड़ रहा, ये जिन लोगों ने मुझे बताया था, ये उसके बाद मेरी टाइम लाइन गवाह है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मैं कभी चैलेंज के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता होता। जो मेरी ये वीडियो पहले आई है, अगर उससे पहले ये किसी ने खबर दी हो तो ये मैंने या आपके इस भाई ने खबर दी थी, ठीक हो गया। अब उसके बाद हामिद मीर साहब कहते मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, जो किसी की खबर होती है उसका नाम लेके हम बताते हैं, ये नहीं कहते कि जी मेरे पास को एक्सक्लूसिव आई है, नहीं। ये ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि जिससे खबर आए उसका नाम लेके खबर बताएं, फिर तजिया आप अपना करें, ठीक हो गया। हामिद मीर साहब ने भी ये कहा कि राब्ते में थे। अब उसके बाद मीर साहब अभी कह रहे थे कि ये पीटीआई के लोगों से भी राब्ते में थे, और जिन लोगों के साथ फैज़ हमीद साहब राब्ते में थे उन लोगों ने वडे घर के साथ राब्ता कर लिया। उन्होंने कहा भाई ये फैज़ हमीद हमसे राब्ता कर रहा है, क्या हमें इससे राब्ता रखना चाहिए? तो उनको वहाँ से जवाब मिला कि आप फैज़ हमीद से दूर रहें, आप फैज़ हमीद के साथ राब्ता न रखें। अब ये जब सारी पुठी बातें सामने आईं, अब आर्मी ने उनको, जैसे कहते हैं जिसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया हो, अब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने उसको अपनी तहवील में लिया कि लो जी मियाँ इधर आ जाओ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको जिधर भी बिठाते हैं। एक खबर यह भी आई थी कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, ये 1.5 साल पहले की बात है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया।
उस खबर में भी इतनी सदाकत ज़रूर थी कि एक वार्निंग के तौर पे उनको ये कहा गया था कि आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, या शायद कुछ इस तरह की सामने चीज़ें आई भी थी कि हाउस अरेस्ट, क्योंकि ये बार बार बाहर जाते, ये मीटिंग करते। इस हालांकि आप 2 साल तक अभी इनको 2 साल नहीं हुए, रिटायरमेंट से 2 साल तक आप कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते, सियासत में किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इवन कोई और ओहदा नहीं ले सकते गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर। लेकिन 2 साल के बाद भी आप चाहें तो सियासत कर सकते हैं, आप साजिश नहीं कर सकते। जी, अब उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है। अब इमरान खान साहब की बारी है कि उनको मिलिट्री कोर्ट कब उनको हवाले किया जाता है। और फैसल वोडा ने कहा है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। जब दूर तक जाएगी तो कौन से और होंगे जो सहूलतकार इनके साथ हैं, जिनके साथ अभी तक फैज़ हमीद अपने इदारे के अंदर जनरल फैज़ हमीद राब्ते में थे, अब उनका क्या होगा। और जो इधर जेल में मुलाकात करवा रहे थे नियाज़ी की, उनका, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ 100% कि अगर इमरान खान को जेल में रखा जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर नियाज़ी को जेल में रखा जाए, ये 3 दिन में सीधा हो जाएगा, इसकी चीखें निकल जाएंगी। इसको महल में रखा हुआ है भाई, ये चॉकलेट्स खा रहा है, यहाँ वहाँ पर बिस्किट खा रहा है, ये जूस पी रहा है, ये इस तरीके से देसी बकरे, पहाड़ी बकरे देसी घी में पका के खा रहा है, और ये देसी मुर्ग खा रहा है। ये तो घर से भी आला माहौल है। इधर को इसमें रोज़ या आधा दर्जन लोग इसके साथ मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं। ये अनोखा लाडला आया है, ये हमारे ही टैक्स के पैसों पे से पल के उसको 10-10 लाख की बाइक्स वहाँ पे और साथ बैरक्स उसकी एक्सरसाइज के लिए, और बाकायदा रिपोर्ट्स आई और बाकायदा कोर्ट्स में जमा कराया गया, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़, सब कुछ। ये अयाशियाँ कर रहा है, इसको जेल में रखो, जो जिसका नाम जेल है। 3 दिन के अंदर अगर इसकी चीखें अडियाला जेल से बाहर निकल के बनीगाला तक ना आई, तो फिर आप कहना कि यार मेरा नाम तब्दील कर लेना। जेल में रखा किसी नहीं है, इसकी अभी तक सहूलतकारी जारी है। ये सहूलतकारी सिर्फ अदलिया से जारी नहीं थी, ये सहूलतकारी बहुत सारी जगहों से जारी थी। ये सहूलतकारी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं बताऊंगा, मालूमात है मेरे पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा कि ये सहूलतकारी कहाँ कहाँ से जारी थी। ये सहूलतकारी इसलिए भी जारी थी, ये सहूलतकारी भी जारी थी, साथ ही ब्लैकमेलिंग भी जारी थी। आप कहेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, यार ये ब्लैकमेलिंग कैसी? सर, ये ब्लैकमेलिंग जारी थी, इसके पास कुछ वीडियोस थी। अब किन लोगों की थी ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं बाद में कभी बताऊंगा। इसने वो वीडियोस बाहर भी भिजवाई हुई हैं और कहा है कि मुझे अगर कुछ कहा गया तो ये वीडियोस रिलीज हो जाएं। ये मामला बहुत ही गंभीर है, इतना आसान मामला नहीं है। अगर इसका कोर्ट मार्शल हो गया, इसको सजा हो गई, ये इससे उसी तरह से जैसे आदिल राजा और बाकी लोगों से वो बैजेस वगैरह और वो सारे ओहदे और वो सारा नाम और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर वो ख़त्म हो गया और इसको जेल में डाल दिया गया, और अगर वाकई ये एक ऐसी कार्रवाई शुरू हो गई है जो इस तरीके, जो अब तो वाकई का तो कोई लफ्ज़ रह ही नहीं गया, क्योंकि ISPR ने अनाउंस कर दिया है कि जनरल फैज़ को यहाँ आर्मी कस्टडी में ले लिया गया है। मैं वाकई इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में इसे सज़ा हो जाती है तो फिर समझो इमरान खान के सहूलतकार तो पकड़े गए। अब सहूलतकार के बाद अब आला कार की, और उसके बाद अब मास्टरमाइंड जो खुद इमरान खान है उनकी बारी है। और बाकी किन किन की बारी लगने लगी है, मैंने तो आपको बता दिया था कि मैंने तो आपको हमदर्दी में बताया था कि अब नहीं बाहर आने लगा, और मैंने तो आपको बता दिया था कि बहुत सारी चीज़ें, और अब हाफिज़ दवाखाना में यूथिया वायरस की जो वैक्सीन है वो तैयारी के आखिरी मराहल में है, बल्कि वो अप्लाई होना शुरू हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।